So the third type from hardwired control unit. Hardwired is, again I will specify the meaning of hardwire. Hardwire is what? Okay, which is being mounted on your motherboard, which is having a physical connection basically. Okay, a physical connections. It can be viewed with the physical connections. Control unit, what does control unit do? It transfers what? It transfers the control signals what it does. Okay. So हम लोग क्या कर रहे हैं? We are designing different types of control unit basically. So the type 1, which was type 1? Hardwired में type 1. State table. What is state table? Chorus, don't give me as in chorus. What is state table? What is state table? One at a time. State table. Yes, please. Zoya का दिन बोलते हैं. Stand up and in English. मराठी का मराठी में बरा उद्या प्रेझेंटेशन द्यायचं आपल्याला. हां थोडं सांग मला, थोडं सांग. जस्ट ब्रीफ करायचं आपल्याला. रो अँड कॉलम. इट इज हॅव्हिंग अ रो अँड कॉलम. ओके. व्हॉट इज रो? Can I say that row represents states? आहे रूप में टाकले दिले. So it is the states T1, T2, T3, T4, T5. Okay, rows are having what? Columns is having what? Instructions. Like what happened on that particular state? A instruction is being executed and the control signals are being generated. Like C of 1, 1. You have written that one. Okay, clear एकदम. So what happens? Are there a single state? Are there a single state? There are multiple states, multiple instructions, and multiple control units or control signals are being generated. Clear एकदम? Okay, that was called as state table. Then we jump on to the second topic called as which one? Flowchart. क्या बोलते हैं उसको? Delay element. What is delay element? We have seen in one example of flowchart. What was there in flowchart? Flowchart is nothing but a flow of a program basically. So wherever there were some control signals, okay, what was happening? Wherever there was some control signal, in between control signal, what we have done? We have inserted a delay. The delay was inserted by a specific element called as a flip-flop. Which flip-flop we have used? We have used D type का flip-flop. उससे क्या होता है? एक delay generate होता है. Correct है? So that was what we have already seen. और क्या क्या था उसके अंदर? We have represented and or. We have used that logical gates basically. Ending अगर दो operations साथ में चल रहे हैं, we can say that if two conditions are true, we are going for and. और वो condition हमने देखी है कल. नहीं समझ में आ रहा तो एक और देखो. रिवाइज कर रहा हूँ मैं. ये आ सकता है एग्जाम. डेफिनेटली आएगा. क्या बोला है मैंने? What I have told you, right? If the two conditions are true, we are using an AND gate. Okay? So यहाँ पे भी क्या है? X is equal to 0 है. यहाँ पे X is equal to 1 है. ठीक है? आने के बाद यहाँ पे subtraction था, यहाँ पे addition था, या यहाँ पे addition था, यहाँ पे subtraction था. दोनों में से एक ही operation होगा. That means we are going for an OR gate. Correct है? OR gate के बाद भी मैंने D नाम का flip flop insert किया है, and that is called as a delay element का स्ट्रक्चर. ओके, हार्डवायर्ड का सबसे पहला स्टेट टेबल, दूसरा डिले एलिमेंट, एंड थर्ड नाउ वी आर गोइंग टू सी इट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस काउंटर मेथड. सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ डायग्राम. द थर्ड टाइप ऑफ हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का ये तीसरा पार्ट इज कॉल्ड एज sequence counter method of hardwired control unit. Sequence counter method. यहाँ पे हम लोग using flip flop. It's called as SR flip flop.
यहाँ पे कौन सा फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है आपको? कहाँ पे दिख रहा है ऐसा फ्लिप फ्लॉप? ऐसा दिसतो तुम्हाला? Where is SR? Sir, S and there are output Q and Q. Okay? So अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये 0 है, ये 0 है तो ये 1. They are opposite. They are opposite. Contradictory. Draw diagram proper. When you are having guest lecture, कौन से टॉपिक के लिए? 4th यूनिट, 5th यूनिट, 2 यूनिट एकदम. मैंने थोड़ा सा लिया था तो भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा डाला था मैंने गेस्ट लेक्चर के लिए, वो भी समझ में नहीं आया. तो हाँ तरी मुलं माझ्याकडे रडत येतात, सर हे राहिलं, सर हे राहिलं, सर हे घ्या, सर हे घ्या. हां मला तर असं वाटतं मी तर रेकॉर्ड मोडला आहे लेक्चरचा. मला वाटतं सर्वात जास्त लेक्चर तुमच्या क्लासमध्ये मीच घेतले त्याचे, है ना? जे सापडेल ते, जे मिळेल ते. काय मित्र मॅक्झिमम यूएच तुम्हीच घेतली. चला पटकन करा फास्ट. काय करायचं तुम्हाला या पिक्चर? व्हॉट एक जस्ट ॲनालिसिस करणार. मला एक्सपेक्टेशन नाही आहे की somebody can answer correctly, but what you are able to see in this diagram, what is there? खाली हे पण आहे कंट्रोल सिग्नल्स. हे पण आहे कंट्रोल सिग्नल्स. चला फास्ट प्लीज. आणखी टॉपिक घ्यायचा. Let's start. Done. येणार म्हणजे येणार आहे कन्फर्म येणार आहे. हा क्वेश्चन प्लीज आता स्टार मार्क करून ठेवा त्यात कुठेतरी. अखंड क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन माइट कम. चांसेस प्रोबेबिलिटी 90%. हे नाही आहे पूर्ण हार्डवेअर कंट्रोल. झालं का? थोडा वेळ लागला नाही पाहिजे. खूप सवय आपली डायग्राम ड्रॉ करायची फास्ट ट्रॅक. Diagrammatic representation is very, very important. Labeling diagram is very important. What does decoder do? What does decoder do? It decodes. Decoder का काम क्या होता है? What is decoder? Decoder में ऐसा बोल सकता हूँ, it is a part of a compiler. Compiler क्या करता है? Compiler is converting a high level language into binary language. कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर डिकोडिंग भी होता है. डिकोडिंग इज टू अंडरस्टैंड what type of high language level is being written, what type of coding is being written, and it is being converted into the binary language. डिकोडिंग का पार्ट. ठीक है. डिकोडर एनकोडर थोड़ा सा और बाद में पढ़ेंगे, जितना है उतना समझ के लो सबसे पहले. ओके. सो अंडरस्टैंड ड्रॉ ऑन डायग्राम. शैल वी स्टार्ट? ओके. what is the topic? What is the topic? Sequence counter method of hardwired control unit. ठीक है. सीक्वेंस काउंटर मेथड. सबसे पहले डायग्राम में क्या दिख रहा है बताओ मुझे. व्हाट यू आर एबल टू सी? सर यहाँ पे सर सबसे पहले मुझे दिख रहा है सर यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप वी आर फैमिली विद एसआर फ्लिप फ्लॉप.
ओके, एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमने क्या देखा? वी हैव सीन अ ट्रुथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, करेक्ट है? शायद आपको याद है, आपके बुक में नोटेड है एवरीथिंग। ओके, अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल व्हाट डज इट टेल्स अस? वी आर ऑलवेज ऑब्जर्विंग एन आउटपुट एट व्हाट? वेयर? एट क्यू, नॉट ऑन क्यू बार। क्यू बार में हम लोग ध्यान नहीं देते। कुछ ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे आगे के फ्लिप फ्लॉप में जहाँ पे हमने क्यू बार में हम लोग इंटरेस्टेड, ठीक है? एसआर फ्लिप फ्लॉप जब हमने स्टार्ट किया, व्हेन वी वर लर्निंग समथिंग अबाउट एसआर फ्लिप फ्लॉप, वी आर इंटरेस्टेड टू ऑब्जर्व द आउटपुट एट क्यू। सबसे पहले मुझे क्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, जब मैं सर्किट को ऑन करूंगा, सर्किट जब स्टार्ट होगा, तब वो आउटपुट जो रिकॉर्डेड होगा वो कहाँ पे होगा? वेयर इट विल बी रिकॉर्डेड एट क्यू, वेयर इट विल बी नॉट फॉर क्यू बार। क्यू बार जो भी है वो चलता रहेगा। और क्यू एंड क्यू बार आर कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स क्या है? दे आर अपोजिट, दे आर उल्टा। अगर वो उल्टा नहीं है तो दैट मीन्स आपके ऑब्जर्वेशंस बराबर नहीं है, वो फ्लिप फ्लॉप का ऑब्जर्वेशन बराबर नहीं है, फ्लिप फ्लॉप प्रॉपर काम नहीं करेगा, करेक्ट है? क्लियर है? सो द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ हार्डवायर कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस जनरेटर काउंटर approach of the delay method, and this method is same but it doesn't require many D flip flop for the control signal. हमने previous method में बहुत सारे D flip flop insert किए थे for the delay। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा D flip flop नहीं यूज़ करेंगे, अगर लगा तो एक आधा flip flop हम लोग यूज़ करेंगे। So when we are reducing the flip flop, what will happen? जहाँ बहुत सारे flip flop थे वहाँ पे हमने reduce कर करके एक ही लाया। कितना? कौन सा? सर आई एम यूजिंग ओनली वन। सर क्या हुआ? सर फायदा क्या? डायरेक्ट फायदा क्या? सर ऑब्वियसली उसका जो सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स था पहले, अभी क्या होगा? इट विल बी रादर इजी फॉर द कनेक्शंस। वो सबसे पहले लॉजिकल आप लिख सकते हो, करेक्ट? अप्लाई योर ओन माइंड व्हाट टू राइट। जब डायग्राम आपको दिखता है तो डायग्राम के हिसाब से आप आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैप कर सकते हो। एग्रीड? करेक्ट है? अगर ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप नहीं है तो कनेक्शंस क्या होगा? लेस कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम होंगी, इट विल बी ईजी टू कंस्ट्रक्ट, करेक्ट है? ऑब्जर्वेशन अच्छे से आ सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक आउटपुट ज़्यादा आएगा। हो गया? मन का ठोको, ठीक है? ओके, देन व्हाट विल हैपन नाउ? सी, नाउ आई वांट टू स्टार्ट दिस सर्किट। इसमें आपको दिख रहा है एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसका आउटपुट, या फिर मुझे एंड बिट दिख रहा है, या फिर मुझे और बिट दिख रहा है, या फिर मुझे मॉड्यूलो के काउंटर दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है? डिकोडर। व्हाट डज मॉड काउंटर डू? व्हाट डज मॉड काउंटर डू? हमने देखा है मॉड काउंटर का वर्किंग। व्हाट डज मॉड काउंटर? व्हाट डज काउंटर डू? मॉड छोड़ दो सर। व्हाट डज मॉड? वी हैव सीन समथिंग अबाउट मॉड 6, हमने देखा है मॉड 10 टिकट काउंटर। तो क्या करता है काउंटर? काय करता काउंटर? हाँ, रिपीट। काय रिपीट? सर इट स्टार्ट्स फ्रॉम सम स्टेट like 0 1 2 3 4 and whatever. For example, say if I am saying mod 6 का काउंटर, तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5. When the sixth state will come, it will automatically stop and it will go round back to 0 and it will start again. तो मुझे क्या, मैंने ऐसा डिजाइन किया है उसको, मैंने उसको ऐसा डिजाइन किया है ताकि वो स्टेप बाईपास हो जाए। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मॉड काउंटर, करेक्ट है? यहाँ पे कौन सा मॉड लिया है उसने? मॉड 42 या कुछ है, कौन सा मॉड काउंटर लिया है? 42 काउंटर, मॉड 42 काउंटर यहाँ पे लिया है, करेक्ट है? मॉड 42 मींस क्या है? 41 तक वो चलेगा। कहाँ से? देखो, यू स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, it will go up to 41 and at 42, okay, we have designed such that circuit is designed such that कि वो 42 पे क्या होगा? This will be 1, this will be what? 1 ना, correct है? कि 0 या 1? हाँ, 0 तो 0 होने के बाद क्या होगा? 0 मींस क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्रीसेट एंड क्लियर, करेक्ट है? तो यहाँ पे क्या होगा? क्लियर, इट इज CLR, देखो ना यहाँ पे सब कुछ। तो अभी क्या होगा? जब 42 का इनपुट आएगा, 42 आएगा यहाँ से 1010 के पैटर्न में, करेक्ट है? तो ऐसा होगा कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो 0 होगा। 0 होने के बाद क्या होगा? 0 विल बी डिलीवर्ड टू ऑल दिस केसेस। इससे क्या होगा? सब आपका पूरा जो सर्किट है वो क्लियर हो जाएगा। दैट मींस इट विल अगेन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 40 लाइक दिस वन। ये मॉड काउंटर इजी है, बहुत इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। आपके सामने डायग्राम है, आपके सामने मेनी स्टूडेंट्स दे हैव डिजाइन देयर ओन सर्किट एंड दैट इज करेक्ट। तो कोई भी
जग में आपको कोई भी वर्ल्ड में कोई भी आपको अगर काउंटर पूछा जाएगा तो आई थिंक दैट यू कैन रिप्रेजेंट इट वेल। सिर्फ आपको क्या करना है, व्हाट विल बी योर ड्यूटी, योर ड्यूटी विल बी टू एडजस्ट दिस नॉट गेट प्रॉपरली। आपको नॉट गेट ऐसे लगाने हैं ताकि आपका वो 42th जो स्टेप है दैट विल बी बाईपास्ड। जब वो आएगा दैट विल बी एट दैट टाइम दिस शुड बी 0। ऑब्जर्व दैट दिस शुड बी 0। अदरवाइज बाकी के स्टेप में क्या होगा, इट विल बी 1 से क्या होगा, यू आर गिविंग प्रीसेट 1 ताकि ये आगे चले, वो काम करे। देखो आप करके देखो इसको, ठीक है, स्क्रैच इट एट रूम। समझते क्या मतलब कि क्लियर है? तो अभी क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ। सो सबसे पहले इस सर्किट को मॉड बता रहा था। सो ये कोई भी मॉड काउंटर हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 10 हो सकता है, 42 हो सकता है। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन योर मॉड काउंटर व्हिच यू वांट टू। ओके, यहाँ पे है डिकोडर सर्किट। डिकोडर मींस वो डिकोड करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो डिकोड करेगा, ठीक है। डिकोड इज अंडरस्टैंडिंग इन बाइनरी लैंग्वेज। सो कंप्यूटर या आपका सिस्टम इसको कन्वर्ट करके डिकोड करता है, ठीक है। सबसे पहले देखो सर्किट स्टार्ट हुआ, तो सर्किट इज गेटिंग स्टार्टेड मींस क्या है, सबसे पहले मैंने क्या अप्लाई किया उसको, आई हैव अप्लाइड अ क्लॉक। व्हाट डज क्लॉक डू, ट्रिगर, करेक्ट, एक्सीलेंट। क्या करता है, ये सर्किट को ट्रिगर करता है। ट्रिगर करने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, मैं इसको स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट कहाँ पे लिखा है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप पे स्टार्ट कहाँ पे लिखा है, सर यहाँ पे स्टार्ट लिखा है। तो स्टार्ट किससे करोगे, 1 से करोगे या 0 से करोगे? स्टार्ट विद 1 ना, करेक्ट है ना, ऑलवेज। तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे S को 1 दिया तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट भी 1 आएगा। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0 है, करेक्ट है, बिकॉज दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी, करेक्ट है ना। एक ही आउटपुट दो, 1 दो, यहाँ पे 1 आएगा, 1 का 1 आएगा और यहाँ पे 0 होगा। आपका वर्किंग देखो, आपका ट्रूथ टेबल देखो, मैच करके देखो आपकी बुक्स में। आगे क्या होगा, नाउ नेक्स्ट। तो आप कैन यू से दैट और विल यू एग्री विथ मी दैट सर ये बंद रहेगा फिलहाल, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिस पार्ट विल बी ऑफ। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से क्या आ रहा है, क्लॉक आ रहा है ना, क्लॉक आ रहा है, और यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, 1। एंडिंग किसका हो रहा है, एंड है ना, जैसे एंड ऑफ क्लॉक एंड 1 मींस दोनों भी कंडीशंस क्या है, ट्रू है। आई वांट द सर्किट टू बी ट्रिगर्ड। सर्किट ट्रिगर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, आई वांट 1 लॉजिक 1 एंड आई वांट क्लॉक टू बी गेटिंग इट। सो एंड क्या करता है, दोनों भी कंडीशन चेक करता है। तो दोनों भी कंडीशन मेरे लिए ट्रू है। ट्रू मींस यहाँ पे से क्लॉक भी आया, यहाँ से 1 भी आया, आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे क्लॉक जाएगा एंड नाउ दिस मॉड के काउंटर विल बी ट्रिगर्ड, ये काम करना चालू करेगा। दैट मीन्स ये ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 जो भी आपने काउंटर दिया है। व्हाई आई एम राइटिंग मॉड के, इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है। द के कैन बी रिप्लेस्ड विद व्हाट, 6 10 15 एनी काउंटर, ओके, ठीक है। अभी नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या होगा, नाउ दिस इज 2 raised to I is equal to k। क्या फॉर्मूला है, इट इज नॉट 2 raised to 1, इट इज 2 raised to I या 2 raised to n करो उसको, इज इक्वल टू k। क्या मीनिंग है उसका बोलो, हमेशा इट इज ऑलवेज 2 to the पावर, करेक्ट है ना। अगर मैंने मॉड 8 बोला तो कितने कंट्रोल सिग्नल्स आएंगे, 3, 2 raised to 3 ना, इज इक्वल टू 8 ऑब्जर्वेशंस है ना। सो 3 मींस व्हाट, सो कितने लाइंस लगेंगे मुझे, कंट्रोल सिग्नल कितने लगेंगे, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यू आर मेकिंग सच फेसेस कि कभी मैंने पढ़ाया नहीं है ऐसे, ओके। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आई वांट, 8 ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट है ना। कैसे, 0 0 0 0 0 1 ऐसे, लाइक दिस वन, 8 ऑब्जर्वेशंस है, करेक्ट है। व्हाट डज 3 रिप्रेजेंट, बिट्स। बिट्स कितने हैं यहाँ पे, अगर मुझे 8 ऑब्जर्वेशन चाहिए तो कितने बिट लगेंगे, सर 3 बिट लगेंगे ना। सो व्हाट इज दिस 3 इज कॉल्ड एज I और n। सो वहां पे मैंने लिखा है देखो, 2 raised to I, मेक इट I, डोंट मेक इट 1, इट विल बी इनकरेक्ट। सो दिस शुड बी 2 raised to I या 2 raised to n, जो आपको समझ में आया होता है। मैंने अब तक क्या पढ़ा है आपको, व्हाट आई हैव टॉट यू, लाइक 2 raised to n इज इक्वल टू जो भी कुछ आपका 8 आएगा, कुछ भी आएगा, या यू कैन से इज इक्वल टू k, 2 raised to n इज इक्वल टू k। सो n कैन बी रिप्लेस्ड विद व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। अगर आपको 16 कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, 2 raised to 4 इज इक्वल टू व्हाट, 16 कॉम्बिनेशन। तो मेरे को कंट्रोल सिग्नल कितने लगेंगे, कंट्रोल लाइंस कितने लगेंगे, 4, ओके। मेरे ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे, 16, करेक्ट है। सो ऐसा ही है। सो ये कंट्रोल सिग्नल है C1 C2 C3, ये कब तक चलेगा, Ck तक। Ck मींस ये आपके ऊपर है, 3 चाहिए 4 चाहिए। सो दिस इज डॉटेड, सी दिस इज डॉटेड मींस ये चलता रहेगा, इट विल गो अप टू k,
क्लियर एकदम? हाँ ओके। अभी क्या हुआ, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दिस सर? सबसे पहले एक बार ऑफिस से डिस्कस करता हूँ। यहाँ से क्लॉक आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद एंड हुई, एंड से दोनों कंडीशन ट्रू हुए और मेरा मॉड के दैट मीन्स मेरा काउंटर चल पड़ा, मेरा काउंटर का काम चालू हो गया। ओके, काउंटर का काम चालू तो डिकोड का काम चालू होगा। काउंटर मीन्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं और डिकोड हो रहे हैं और काम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल सिग्नल्स मैंने यहाँ पे मैप कर दिए। ओके, अभी सोचो कि आई एम कमिंग ऑन द लास्ट, आई एम कमिंग ऑन 42 स्टेप, जहाँ से क्या चाहिए, आई वांट टू एंड दिस, आई वांट टू स्टॉप दिस। सो मुझे क्या करना है, ऑटोमेटिकली मेरा सर्किट ऐसा डिजाइन मैंने किया है कि ताकि ये क्या हो जाए, इट शुड गेट रीसेट। तो रीसेट करने के लिए मैंने कंडीशन क्या डाला है, क्या कंडीशन है यहाँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल पुशिंग दिस एज व्हाट, आई विल मेकिंग दिस एज 1 और ये क्या रहेगा 0। रीसेट करना है ना मुझे, तो यहाँ पे इसमें क्या देना पड़ेगा, आर में क्या देना पड़ेगा मुझे 1, मुझे ये चाहिए ना, आई वांट दिस टू बी हैपन। सो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0। अभी यहाँ पे 1 आया, 1 आने के बाद मींस क्या है, और क्या बोलता है, एनी वन कंडीशन कैन बी ट्रू, एनी वन कंडीशन कैन बी ट्रू। तो नीचे की जो सिस्टम रीसेट की लाइन आ रही है वो कुछ भी आने दो, यहाँ पे क्या आया 1 आया, दैट मींस इट विल बी ऑन। ऑन मींस क्या है, यहाँ से रीसेट जाएगा, रीसेट जाने के बाद ये ऊपर जाएगा एंड इट विल ट्रिगर द क्लियर, इट विल ट्रिगर द क्लियर, क्लियर का बटन वो ऑन करे, दैट मींस आपका जो जितना भी इनपुट था वो क्लियर हो जाएगा, योर सर्किट विल ऑटोमेटिकली रीसेट। करेक्ट है, क्लियर? ओके, और आगे इंस्ट्रक्शन जाएंगे और ये बंद हो जाएगा, दिस विल बी क्लोज्ड, ये उसका ऑपरेशन है। अभी और एक लाइन नीचे से आ रही है, कौन सी लाइन आ रही है, सिस्टम रीसेट, दिस कॉल्ड सिस्टम रीसेट। अगर आपको हार्ड बूट करना है, हार्ड बूट मींस क्या है, आप एक नॉर्मल रीसेट करते हो, कैसे करते हो, आपके मशीन को सर मुझे ऑप्शन दिया गया है रीसेट का। ओके, हार्ड बूट मींस क्या है, मुझे जबरदस्ती उस मशीन को बंद करना है, रीसेट करना है, तो मेरे पास हार्ड बूट का भी ऑप्शन है, लाइक सिस्टम रीसेट। I will just press that button and automatically 1 will be given and 1 will be delivered to clear and it will reset. This called as hard boot. बस इतना ही ऑपरेशन है। हाँ क्लियर, यहाँ पे क्या किया, कुठे 1 जातो नाही, क्लिअरला 1 नाही जात। हाँ, त्याची कंडिशन किती 1 पाहिजे ना, कळलं, त्याला ऑन करण्यासाठी, त्या बटनला ऑन करण्यासाठी 1च पाहिजे ना, असं मला म्हणायचं आहे। ठीक आहे ना, डोंट मॅप दिस एज दिस थिंग, ओके, दिस इज अ डिफरंट थिंग। मला ते सर्किट चालू करण्यासाठी 1च पाहिजे, पण तो 1 कुठून येतो हे लक्षात घे ना, हा 1 रिसेटचा 1 आहे, हा इथला 1 नाही। हा कळलं, क्लियर? थोडंसं येस, मला स्टॉप करायचं आहे ना, मला रिसेट करायचं आहे ना मशीन, तर मी रिसेटचं देईन ना, मग इकडे रिसेटला 1 आलाय ना, मग तू मशीन रिसेटला तर 0 यायला पाहिजे, तसं नाही येते, ती पिन आहे, इनेबल झाली। सो दिस इज 1, जब ये इसका 1 है, इसका 1 और इसका 1 फर्क है, इसका आने वाला 1 और इसका आने वाला 1 फर्क है। सो यहाँ से 1 आ रहा है, किसका 1 आ रहा है, एंड का 1 आ रहा है। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इज आय टू एंड, सो त्याचा 1 तो होता, दोघंही 1 मध्ये फरक आहे, तो येतो 1 म्हणजे काय, तो सिग्नल आहे ग, हा कंट्रोल युनिट आहे, हा 1 नाही, तुझ्या भाषेत तू डोक्यात 1 घातला, तो 1 नाही, इट्स अ कंट्रोल सिग्नल। तो कुठून येतोय, इथून येतोय, हा 1 म्हणजे मी फक्त एक हायपोथेटिकल मांडली आहे, मला एक सिग्नल पाठवायचं आहे, मला एक सिग्नल सेंड करायचं आहे, बस। हां, गॉट इट? अजून काय डिफिकल्टी, एनी डिफिकल्टी? यू अंडरस्टूड दिस? सो दिस वॉज व्हॉट a sequence counter method of hardware control. So I hope this is also written as 0 to k minus 1. Why? मॉड्यूल काउंटर कैसे वर्क करता है, मॉड 6 कैसे काम करता है, 0 to 5, करेक्ट, ऑलवेज n minus 1 और k minus 1, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिख के रखा, क्लियर एकदम, एनी डिफिकल्टी? अजून काही आपण नाही करायचं, सिस्टीम ऑब्झर्वेशन दिले ना, तू टेबल दिले ना, असं काय करतेस, हा टेबल लिहिलाय तू, टेबल लिहिला म्हणजे काय, ते मॅपिंग होत चाललंय ना, तू पहिल्यांदा काय लिहिलं, इथे 0 घेतला, बरोबर आहे, थांबणार आहे का तिथे, नाही, तो एक मशीन आहे, मी काय म्हणतोय तुला की मी इन्स्ट्रक्शन लिहितो, आय एम रायटिंग सम इन्स्ट्रक्शन, MOV, A, B,
everything is converted into what? Binary. Everything is converted into binary. So binary means काय? जेव्हा binary signal हा येईल त्यावेळेस मला थांबायचं. So this is in sequence. Continuous. ठीक आहे? अजून काही? प्रूफ पण करून दाखवलं. आपण एक एनालिसिस पण करतो. प्रत्येक वेळेला आपण डायग्राम एक एनालिसिस पण करतो. वी आर डूइंग एन एनालिसिस अँड देन वी आर कमिंग टू सम कन्क्लुजन. करेक्ट आहे? हा रिसेटच का होणार आहे? हा चालूच का होणार आहे? हा मला आउटपुटच का दिसणार आहे? मॉड कसा वर्क होणार आहे? सो वी आर डूइंग सम एनालिसिस ॲट दिस थिंग्स. अजून काही डिफिकल्टी? क्लियर एकदम? सो वी हैव सीन 3 टाइप्स ऑफ हार्डवायर्ड कंट्रोलिंग. सबसे पहला स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल, दूसरा डिले मेथड एंड थर्ड इज सीक्वेंस काउंटर वी हैव. तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको तीनों के तीनों एक्सप्लेन करना है. द लास्ट पार्ट रिमेनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल. क्या है? द लास्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस फ्रॉम यूनिट नंबर 5 इज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल. सो कंट्रोल यूनिट बहुत तरीके से डिजाइन हो रहा है. उसका हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में पड़ा. नाउ द लास्ट टाइप फ्रॉम कंट्रोल यूनिट डिजाइनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. उसका डायग्राम फटाक से निकालना. ड्रॉ डायग्राम बस. Get your assignment checked. Probably I will float unit number 5 assignment to you today. Huh? Good enough. Let me finish this. Arrows properly दिखाओ. Directions properly mark करो. The elements are IR. IR stands for instruction register. You can write down the full form. IR is instruction register. You all know. Okay, we have seen IR, IBR. We have seen MAR, MBR or something. This is called as MUX multiplexer. Multiplexer means many input, one output. Okay, then is micro PC. Microprogram counter, incrementer, control memory, control field, branch address and branch conditions and their respective directions. This is the last part of your unit number 5 syllabus. I hope that you are practicing K-map at your home. किती लोकांना K-mapला इश्यू होत आहे. त्यामुळे डिफिकल्टी कोण म्हणा मानेला विचार. मानेला सोबत घ्या. माने यांना जरा एक्सप्लेन करतात. 5 व्हेरिएबलचा K-map एक्सप्लेन द्याच त्यांना. तेच माहिती नाही. हां एक घेऊन आज एक्सप्लेन कर. नाही कळलं तर माझ्याकडे या. मला दाखवते कसं सॉल्व केलं. थोडा वेळ काढतो माने. ओके, यहाँ पे जो आ रहा है एड्रेस ऑफ फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन, fetch micro instruction from control memory, control signals, branch address, load branch address and status flags.
टाइम इज अप। चलो शैल वी स्टार्ट विथ डिस्कशन। की अजून डायग्राम ड्रॉच केलेली नाही. स्टार्ट करें थोड़ा डिस्कशन। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? कंपोनेंट्स कौन से कौन से? सबसे पहले कंपोनेंट का आइडेंटिफाई करो। राइटिंग दिस आंसर्स आर रादर इजी। आप आपके हिसाब से कोरिलेट करके आपका आंसर्स दे सकते हो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है हार्डवेयर का। वी नीड सम हार्डवेयर नॉलेज। क्या दिख रहा है आपको? कंपोनेंट्स कौन से दिख रहे हैं? तो सबसे पहले मुझे दिखा है सर मार्क्स, यू ऑल नो अबाउट मार्क्स। तो कैसे करायचं? अगर उन्होंने पूछा 8 मार्क के लिए, सर 8 मार्क के लिए कैसे लिखूँ? हाउ शुड वी राइट? ये क्वेश्चन आता है आपके सामने हमेशा। हाँ, तो इसको क्या करना है? ब्रेक दैट into pieces. Like you can explain mux, you can explain आया. What is आया? Instruction, register काय? register वेगळा, register वेगळा. हाँ, कळलं काय म्हणतो मी? RESISTOR REGISTER. कळलं का? They are sound, they are synonym of each other. Sound same ना? नहीं, synonym is meaning. What we can say? Rhyming. It's basically a rhyming. समजत नाही आपलं नेमकं काय बोलतोय. कळत आहे? ठीक आहे. Then माइक्रो पीसी. ओके, इंक्रीमेंट ऑब्वियसली वो इंक्रीमेंट करने का कुछ काम करेगा. देन कंट्रोल यूनिट, देन ब्रांच कंडीशन, ब्रांच एड्रेस एंड कंट्रोल. सी माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल टू परफॉर्म माइक्रो ऑपरेशन. दोनों बार प्रिंट ऑपरेशन टू गो फॉर माइक्रो ऑपरेशंस. which operations you are writing, which instructions you are writing, you are focusing on micro instructions. micro instruction का हमने टाइप देखा है. कौन सा टाइप? 2-3 इंस्ट्रक्शन थे ना T0 में, सबसे पहले ऊपर लिखा था. 4 माइक्रो इंस्ट्रक्शन. प्लीज सी. हाँ बताइए. I started my discussion with this ये micro. क्यों माइक्रो इंस्ट्रक्शन? सी इंस्ट्रक्शन कितनी है? इतनी है. आप आपके जावा में, आपके C++ में, पाइथन में अच्छे बड़े इंस्ट्रक्शन लिखेंगे. राइटिंग लाइन्स तब माइक्रो इंस्ट्रक्शन. AR पॉइंट्स टू PC. दैट मींस PC का जो डेटा है वो किस में जाएगा? AR. दिस आर ऑल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस. सो इसके ऊपर काम करो. सो प्रोग्राम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या है? इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस टाइप ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन. तो उसको क्या करना है? ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट कैसे बिहेव करेगा जब ऐसे इंस्ट्रक्शंस आएंगे? हाउ कंट्रोल यूनिट विल बिहेव और हाउ इट विल वर्क, उसका वर्किंग वी आर लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर बिट. इट्स कॉल्ड एज प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. ठीक है. सो आज नेक्स्ट टाइम जब पूछूं मैं आपको माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, यू शुड बी एबल टू आंसर. दिस आर अगेन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस. सी वही लिखेंगे. एवरीवेयर वी आर फोकसिंग ऑन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस. सो इसको क्या लगता है?
टू ऑपरेट वी नीड एन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। अभी क्या हो रहा है? What is the first step? What is the first component which you can see? Starting is IR. What does IR do? What does IR do? मैंने कल भी बोला था। Sir, it is a type of register which stores instruction. Which instruction? The first instruction which is in a line, pipeline. Pipeline पढ़ा है आपने? So मेरे पास अगर instructions है 1, 2, 3, 4, 5, so सबसे पहले ये जो instruction है किसके अंदर जाएंगी? IR के अंदर जाएंगी। ठीक है, और दूसरी जो इंस्ट्रक्शन आएंगी वो किसके अंदर रहेगा? इसके अंदर रहेगा IBR। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन IR एंड IBR। समझ जाओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IR एंड IBR? कल बोला ना। व्हाट डज IR डू? इट इज हैविंग द करंट इंस्ट्रक्शन व्हिच इज टू बी एग्जीक्यूटेड, और आगे वाली दूसरी नंबर की जो इंस्ट्रक्शन जिसकी लिस्ट प्रायोरिटी वो किसके अंदर रहेंगे? IBR। इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। बफर मीन्स वो बफर में है, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है जब तक IR खाली नहीं होता तब तक। जब IR पहली इंस्ट्रक्शन को काम करेगा, आगे भेजेगा, देन द सेकंड विल कम इनटू IBR से किसके अंदर आएंगी? IR के अंदर आएंगी। लाइक दिस वन सीक्वेंस याद रखना। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो आई वो किसके अंदर आई? IR के अंदर आई। उससे क्या हुआ? एड्रेस ऑफ द फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। हम लोग इंस्ट्रक्शन के ऊपर नहीं खेलते, वी आर प्लेइंग ऑन एड्रेस। वी आर इंटरेस्टेड फॉर द एड्रेस वेयर द इंस्ट्रक्शन इज बीइंग रिसाइडिंग इन मेमोरी। आपने पॉइंटर पढ़ा है सी के अंदर? हैव यू हर्ड समथिंग अबाउट पॉइंटर इन सी? क्या बोलता है? व्हाट इज पॉइंटर इन सी? कितने लोगों को मालूम है पॉइंटर इन सी? हाँ, कितने लोगों को मालूम है? वी आर प्लेइंग विद द एड्रेस कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। इट्स कॉल्ड एज पॉइंटर। वी आर यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉइंटर एंड दैट आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। नॉर्मली वेरिएबल कैसे लेते हैं हम लोग? इन सी इन ए, और आप लिखते हो सेमीकोलन। ओके, नॉर्मली पॉइंटर कैसे होता है नहीं मालूम ना? इन like this, they are written as star. अभी क्या हुआ? What does this line tells you? Address of first micro instruction. करेक्ट है? कौन सी वाली? जो IR के अंदर है। मीन्स IR रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है जो इंस्ट्रक्शन को पकड़ के बैठा है, और उसका जो एड्रेस है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है, दैट इज बीइंग सेंडेड टू व्हाट? माइक्रो प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? इट पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन व्हिच इज इन द फर्स्ट कॉलम। सो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कैन आई राइट दिस एज PC? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे IR भी है, यहाँ पे PC भी है, आर देयर एनी डिफरेंस? डिफरेंस है कि नहीं? है ना कि नहीं? ऑब्वियसली दो अलग अलग रजिस्टर तो डिफरेंस होगा ना नहीं? तो क्या करता है? आप बोलते हो सर हम लोग थ्योरी कर लेंगे। हाँ, यू कांट आंसर द थ्योरी क्वेश्चंस। मैं स्लो पेस पे ले रहा हूँ, स्लो पेस पे डाल रहा हूँ, है ना? मेरी बॉलिंग फास्टर नहीं है, स्लो पेस पे काम कर रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू व्हेन आई एम राइटिंग एन इंस्ट्रक्शन, दिस इज माय फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर ध्यान दो प्लीज। यहाँ से PC को पॉइंट कर रहा है और यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन IR के अंदर गई है। उसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर प्रोग्राम काउंटर जो है ये इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और IR में एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है। समझ में आया? दैट इज व्हाई देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज फॉर द सेम इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 करेक्ट, इसमें एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है, इसमें एड्रेस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। किसके अंदर गई? माइक्रो PC के अंदर गई, माइक्रो प्रोग्राम काउंटर। ओके, माइक्रो प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जो है वो एक ही इंस्ट्रक्शन को पकड़ के बैठता है क्या? एक ही इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पकड़ के बैठता है क्या? नहीं, उसको आगे भी जाना है, उसको आगे के इंस्ट्रक्शंस भी एग्जीक्यूट करने। तो वो कौन करेगा?
वो कौन करेगा? इंक्रीमेंटर। इंक्रीमेंटर क्या करेगा? प्रोग्राम काउंटर को बोलेगा चल आगे की इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ले, बस हो गया, पहले का काम पहला एग्जीक्यूट हो गया, उसको भेज। तो जाने के बाद इट विल गो टू व्हाट? द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी पुश टू व्हाट? कंट्रोल मेमोरी टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स। क्यों? बराबर है ना, इंस्ट्रक्शन है वो, उसके हिसाब से आगे के मैकेनिज्म काम करेंगे, आउटपुट मुझे दिखेंगे। सो वहां से क्या होगा? नाउ कंट्रोल मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट शोइंग यू, इट विल जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स। द कंट्रोल सिग्नल्स जनरेटेड फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी विल बी कैच्ड इनटू कंट्रोल फील्ड। करेक्ट है? ओके, सो कंट्रोल फील्ड क्या करेगा? इट विल होल्ड कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, अभी बीच बीच में क्या हो रहा है? देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर प्रोन टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग मींस यहां से डायरेक्ट वहां पे जंप करना है। देयर आर सम लूप्स में करते हैं हम लोग, और देयर आर सम इंस्ट्रक्शन व्हिच आर बीइंग रिटन एज जंप, JUMP इन C। मींस देखो इसका मीनिंग देखो प्लीज, सी आई एम हैविंग इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंस्ट्रक्शंस आई हैव। मेरा जो सीक्वेंस होता है कि ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होना चाहिए। दैट मींस 1, फिर उसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड लाइक दिस। लेकिन बीच में ऐसी इंस्ट्रक्शन आती है जो यहाँ पे लिख के आती है JMP। जब मेरा सीक्वेंस यहाँ पे आता है, when my pointer is coming on to this part, it will jump on 105th line। So ये जो लाइन नंबर 11 है, यहाँ से वो क्या करेगा? डायरेक्टली जंप करेगा एंड इट विल डायरेक्टली कम ऑन टू लाइन नंबर 105। वो छोड़ देगा सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। तो जब ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस आती है बीच में, दैट आर कॉल्ड एज ब्रांच एड्रेस। सो उसका एड्रेस भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन, माइक्रो पीसी या प्रोग्राम काउंटर के पास जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको मैकेनिज्म क्या बोल रहा है? माइक्रो पीसी, माइक्रो प्रोग्राम काउंटर एक करंट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है अभी हमारे लिए, द फर्स्ट वन। लेकिन बीच में ऐसा कुछ ट्विस्ट आया प्रोग्राम में कि एक जंप इंस्ट्रक्शन बीच में आई और माइक्रो प्रोग्राम काउंटर उस जंप इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेके बैठा है, क्योंकि उसको जंप करना है अनदर पार्ट को, ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन छोड़ के। 11th लाइन के बाद वो 12th लाइन के पास नहीं जाएगा, इट विल डायरेक्टली कम ऑन टू द लाइन नंबर 105 बिकॉज ऑफ दिस ब्रांचिंग इज कमिंग इन बिटवीन टू डिस्टर्ब। करेक्ट है? ओके, सो दिस विल कम इनटू दिस वन, और उसके कंट्रोल में भी उसके कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे लाइन नंबर 105 के इंस्ट्रक्शन के, और एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन योर कंट्रोल फील्ड। उसके हिसाब से आपका आगे का मैकेनिज्म काम करेगा। ओके, सो उसको ही लेके आता है मेरा ब्रांच कंडीशन। ब्रांच कंडीशन मींस उसका ही एड्रेस, और उसका ही एड्रेस जा रहा है माइक्रो प्रोग्राम काउंटर के अंदर। सो यहाँ पे ब्रांच कंडीशन ऑकर हुई। ब्रांच कंडीशन ऑकर होने के बाद दैट इज गिवन टू योर मार्क्स, मींस इट गोज इन हैंड इन हैंड। एक साथ सारे कंपोनेंट काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं है। सम इंस्ट्रक्शन माइट कम फ्रॉम हियर एंड सम इज गिवन टू योर मार्क्स। सो व्हाट इज मक्स इज हैविंग? मक्स का मीनिंग क्या है? मक्स इज मल्टीप्लेक्सर। क्या करता है मल्टीप्लेक्सर? मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? मल्टीप्लेक्सर के पास बहुत सारे इनपुट हैं, मींस आपकी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 भी है और इंस्ट्रक्शन नंबर 105 भी है, इंस्ट्रक्शन नंबर 12 भी है। तो ब्रांच कंडीशन क्या करता है? इट इज सेंडिंग सम सिलेक्ट कंडीशन टू मक्स। मक्स क्या करता है? इट इज हैविंग मल्टीपल इनपुट एंड वन आउटपुट। करेक्ट है? मैपिंग कैसी होती है? द वन इंस्ट्रक्शन इज बीइंग चूजन अकॉर्डिंग टू कंट्रोल लाइंस। जो कंट्रोल लाइन में है, जो वो सिग्नल दे रहा है, उसके हिसाब से एक इंस्ट्रक्शन ऑन हो रही है एंड दैट इज बीइंग गिवन एज लोड ब्रांच एड्रेस। देखो प्लीज एक बार डिस्कशन वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज सी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ठीक है? सी, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन नंबर 1 आई जो आयात के अंदर है। करेक्ट है? माइक्रो पीसी, माइक्रो प्रोग्राम काउंटर इज होल्डिंग एड्रेस ऑफ दैट फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन मेरा स्टार्ट हो गया। कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल मेमोरी के अंदर आया और यहाँ से कंट्रोल सिग्नल आया कंट्रोल फील्ड के अंदर आया। थोड़ी देर के बाद देयर इज सम ट्विस्ट इन द प्रोग्राम दैट देयर आर जंप इंस्ट्रक्शन और ब्रांचिंग कंडीशंस आते हैं। ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शन आई तो क्या करना है, कैसे काम करना है? देखो प्लीज, अगर ऐसी कुछ कंडीशन आ रही है तो ब्रांच कंडीशन की इंस्ट्रक्शन जो है वो जा रही है मक्स के पास।
पैरेलली उसका एक एड्रेस भी है, और ठीक है, एंड दैट एड्रेस इज बीइंग ऑलरेडी गिवन टू योर माइक्रो प्रोग्राम काउंटर। ऊपर से मक्स वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट कर रही है बिकॉज इट इज हैविंग मल्टीपल सिलेक्ट लाइंस। तो वो इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट हुई, मींस कौन सी वाली ब्रांच कंडीशन सिलेक्ट हुई जिसको एग्जीक्यूट होना है, करना है, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इट इज उसका जो एड्रेस है उस इंस्ट्रक्शन का, ब्रांच का एड्रेस है, दैट इज आल्सो गिवन टू योर माइक्रो प्रोग्राम काउंटर along with this address. So it is matching with this address with this address. यहाँ से भी एक एड्रेस देने वाले हैं, यहाँ से भी एक एड्रेस जा रहा है, और यहाँ से मक्स से भी एक एड्रेस आ रहा है, एंड दैट इज बीइंग मैच्ड। अगर दोनों भी एड्रेस मैच हुए तो क्या होगा, इट विल बी गिवन टू योर माइक्रो प्रोग्राम काउंटर टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल। उसके हिसाब से आपका सर्किट काम करेगा। सो 2 times so 2 times that address is being compared, one from branch address and one from load branch address. load means ये mux खुद जनरेट कर रहा है और ये डायरेक्ट आ रहा है यहाँ से। That is what you are going to write. बस इतना लिखा, इतना भी एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा। इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और एक कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, कैसे काम करता है, ठीक है। फॉर टुडे, फॉर टाइम बीइंग वी स्टॉप फॉर टुडे। वी विल डिस्कस दिस थ्योरी बाय टुमारो। आई एम हैविंग लेक्चर बाय टुमारो। ओके, इसके आगे आपको कुछ डाउट है क्या? एनी डाउट्स यू आर हैविंग? ओके, इसको छोड़ के और यू आर हैविंग एनी क्वेरीज? एनी क्वेरीज? सर क्वेरीज ही क्वेरीज क्या है? हाँ, लाइफ इज पजल्ड। सर कितना भी पढ़ाओ तो भी कम है हमारे लिए। हाँ, यस, बोलो बोलो। व्हाट आई शुड प्रिपेयर फॉर यू? आता जेव्हा विचारतो तेव्हा कोणी बोलत नाही, मग माझ्याकडे येऊन रडतात। काय करू सांगा प्लीज? व्हाट शुड आई प्रिपेयर? कल तो मैं खत्म करूंगा इसको। और कुछ क्वेरीज है आपके? सर मिली और मूर मी चांगलं शिकवतो, ठीक आहे चालेल। उद्या मी थोडंसं मिली मूरचं काम करायचा प्रयत्न करतो। हां, दॅट इज द थर्ड सब्जेक्ट दॅट इज कमिंग इन लाईन। तुम्ही डेलला 3 सब्जेक्ट शिकतात। फर्स्ट इज कोर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड कंप्यूटर ऑर्गनायझेशन, हा सेकंड दूसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। कहते हैं आई एम फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, माय कोर इज ऑल कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आई एम नॉट फ्रॉम IT डिपार्टमेंट। सो आम्ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटमध्ये कंप्यूटर ऑर्गनायझेशन हा सब्जेक्ट शिकलेला आहोत। सो वी हॅव ऑलरेडी लर्न दिस। सो ते जे पार्ट आहे त्याचा जो हा 5th युनिट आहे दॅट इज ऑन कंप्यूटर ऑर्गनायझेशन, सेकंड सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट इज योर TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, दैट यू विल बी लर्निंग इन 3rd ईयर। उसका भी पार्ट है मिलियन मूर मशीन। समजतं? म्हणून डेल का इम्पॉर्टंट आहे, कळलं? डेल डिफिकल्ट का आहे, का ओरडतो मी, का बोलतो मी? प्लीज इसको ऑफ कर, इसको ऑफ कर। कब करेंगे वायरल वीडियो? सर आपको टाइम लग रहा है उसको। करो पूरा। 2 वीडियोज़ हो गए।